A very good evening to everyone. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in CSE department of Chandigarh Polytechnic College. Today in this lecture, we will discuss the pin diagram of 8085 microprocessor. In previous lectures, we discussed about block diagram and bus organization in 8085. And for today, the topic will be pin diagram of 8085. First of all, the pin diagram of 8085 consists of 40 pins. That means जो आपकी 8085 की IC होगी यानी कि जो आपकी 8085 की chip होगी, that will contain 40 pins and each pin will work differently. Okay, 8085 works on plus 5 voltage power supply and its frequency will be 3 megahertz. Right. Here we have the pin diagram of 8085 where you have 40 pins. First 20 pins are from top to bottom on the left side and the next 20 pins will be on the right side from bottom to top. You cannot change the position of any pin. Correct? Now let us discuss these pins in detail. Here is the pin description. There are 40 pins in 8085 and we divided the 40 pins into 6 groups and each group will contain the pins of similar types. Correct. Here we have 6 groups. First is frequency and power supply signals. Second is higher order address bus. Next is address data bus. Fourth one is control and status signals. Next, serial input output signals. And the last one will be your interrupt or peripheral initiated signals. Correct. So let us start discussing these groups and their pins. First one is your power supply and frequency signals. It will contain the pins X1, X2, VCC, VSS and CLK. X1, X2 as you saw in the diagram, it is your first and second pin. These two pins are used to provide the required frequency to the microprocessor. Means जो X1, X2 वाली आपकी pins होंगी, they will provide the frequency to the microprocessor, whatever will be the frequency requirement for it. As we said, it works on 3 megahertz frequency, so that will be provided by these two pins, X1 and X2. Correct. Next is your VCC. VCC is used for voltage supply, that is your plus 5 volt. Correct. Next is your VSS. VSS is used for ground reference. We all know कोई भी आपकी चिप होगी, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, देयर मस्ट बी अ ग्राउंड रेफरेंस. अर्थ की एक वायर जरूर होती है. तो 8085 में जो आपका अर्थ का कनेक्शन होगा, दैट विल बी यूजिंग VSS पिन. VSS is your ground reference pin or you can say earth reference pin. Correct. Next is your CLK. CLK means your clock. CLK pin is used to represent system clock according to which all other devices will work. CLK आपकी 8085 की क्लॉक रहेगी जिसके अकॉर्डिंगली आपके माइक्रो प्रोसेसर उससे कनेक्टेड सारे डिवाइसेस उसी क्लॉक के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. करेक्ट. So these are your power supply and frequency signals. Each pin have their different position on pin diagram, so you have to remember those positions. Like X1, X2 is your first and second pin. VSS I guess is your 20th pin and VCC is your 40th pin. You can get the positions in the pin diagram. All right. Next is your higher order address bus. As we discussed in block diagram of 8085, it consists of 16-bit address. We have divided the 16-bit address into two parts. That is from A0 to A7 and A8 to A15. Here, this A8 to A15 are your higher order bus, and for that we have 8 different pins. Correct. This is your higher order address bus. And the most least जो आपके significant bits होंगे, that is A0 to A7, उनको हमने डाटा के साथ कंबाइन किया हुआ है. This is your higher order address bus from A8 to A15. For that we have 8 different pins. Next is your address data bus. In the last slide there was higher order address bus, that is from A8 to A15. In this we have the lower order address bits and data together. Suppose हमारे पास एड्रेस और डेटा के लिए अगर हम अलग अलग पिंस लें तो हमें कितनी पिंस की रिक्वायरमेंट होगी. एड्रेस के लिए 16 पिंस अलग, डाटा के लिए 8 पिंस अलग. दैट विल बी इक्वल्स टू 24 पिंस. मतलब अगर हम एड्रेस और डेटा को कंबाइन नहीं करते हैं यहाँ पे तो आपको 24 पिंस की जरूरत होगी. बट हमने क्या किया है, एड्रेस की लो ऑर्डर की 8 बिट्स को डेटा के साथ कंबाइन कर दिया. ठीक है. तो अब आपको कितनी पिंस की रिक्वायरमेंट हुई, ओनली 16.
तो आपके पास आपकी जो आईसी होगी, चिप होगी, वो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा हो जाएगा, जितनी पिन्स बढ़ेंगे उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, लो ऑर्डर की एड्रेस बिट्स को हमने डेटा के साथ कंबाइन किया है, दैट इज फ्रॉम AD0 to AD7. This is your address data bus which can contain address as well as data. Address कौन सा address? Lower order 8 bits, क्योंकि higher order की 8 bits आपकी different bus पे चलेगी, that is A8 to A15. ठीक है जी। AD0 to AD7 आपकी 8 बिट्स होगी। ये 8 बिट्स आपकी एड्रेस की लोअर बिट्स भी हो सकती हैं और आपका डेटा भी हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। हमारे पास 8085 में मतलब 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं और एक स्टेटस सिग्नल है। ठीक है। कंट्रोल सिग्नल्स आपके कौन कौन से हैं? ALE, RD, WR, IO/M, S0 एंड S1। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स में सबसे पहले आपका आता है ALE। ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच एनेबल। अभी आपने जो सबसे लास्ट सिग्नल डिस्कस किया था वो था आपका AD0 to AD7 वाला, ये वाली पिन्स डिस्कस करी थी। हमने क्या कहा था कि AD0 to AD7 पे आपका एड्रेस भी हो सकता है और आपका डाटा भी हो सकता है, बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वहां पे एड्रेस है या डाटा है? एक टाइम पे होगी एक ही चीज, या तो एड्रेस होगा या फिर डाटा होगा, बट हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि वहां पे एड्रेस है या डाटा है? टू आइडेंटिफाई दैट हम लोग यूज करते हैं ALE, एड्रेस लैच एनेबल। एक पिन है, इन पिन्स की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। करेक्ट। ALE की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स अगर ये पिन एक्टिव है उस टाइम पे AD0 to AD7 वाली बस पे एड्रेस होगा, और अगर आपकी ALE की वैल्यू 0 है दैट मीन्स वो एक्टिव नहीं है, तब आपकी AD0 to AD7 पे डाटा होगा। इट इज एड्रेस लैच, ये बेसिकली एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। इसीलिए हमने बोला है कि अगर ALE एक्टिव है, एक्टिव होना मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तब आपका एड्रेस होगा, और अगर ये लो है दैट मीन्स एक्टिव नहीं है और इसकी वैल्यू 0 है, तब आपका AD0 to AD7 पे डाटा होगा। Correct. ALE, address latch enable. It is an important term. You have to remember this. ALE is address latch enable, जो आइडेंटिफाई करती है कि AD0 to AD7 पे एड्रेस है या फिर डाटा है। करेक्ट। एंड इट इज योर कंट्रोल सिग्नल। नेक्स्ट आर योर RD dash WR then IO/M. Here we use a inverted comma, single inverted comma. What does it mean? It means कि ये वाले जो सिग्नल्स हैं आपके ये लो पे काम करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपके सिग्नल्स जब उनकी वैल्यू 1 होती है तभी एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो लो पे, दैट मीन्स जब उनकी वैल्यू 0 होती है वो तब एक्टिव होते हैं। तो आपका RD, WR और IO/M में M जो है ये आपके लो सिग्नल्स हैं। ठीक है। आप इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सिग्नल के ऊपर बार भी लगा सकते हो। पिन डायग्राम में जब आपने सिग्नल्स लिखे हुए हैं तो वहां पे इन सिग्नल्स के ऊपर बार है, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हुए हैं, जस्ट टू टेल यू कि you can use bar as well as these inverted commas. Okay. RD is your read signal. It is a active low control signal. Obviously अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ इन्वर्टेड कोमा है, that means कि ये लो पे काम करता है। मतलब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो मतलब उस टाइम पे आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। It can be with memory or it can be with your input output devices, any. Correct. Next is your WR. WR stands for write operation. इसके साथ भी आपका कोमा लगा हुआ है, that means this signal also works when it is low. ठीक है जी। WR इज योर राइट ऑपरेशन। जब ये सिग्नल लो होगा दैट मीन्स इस सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, तब हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? राइट ऑपरेशन। ओके। नेक्स्ट इज योर IO/M. IO is your input output and M is your memory. करेक्ट। हेयर हमने इस सिग्नल में बेसिकली क्या बताना चाहा है कि जो आपके रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ हो रहे हैं या फिर मेमोरी के साथ हो रहे हैं। अब इस सिग्नल में दो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट है और मेमोरी है। मेमोरी के साथ आपका क्या लगा हुआ है? इन्वर्टेड कोमा। इसका मतलब क्या हुआ? इस सिग्नल की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स ये सिग्नल अगर हाई पे है, तब आपके कौन से डिवाइसेस के साथ आप रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। इन द सेम वे अगर इस सिग्नल की वैल्यू लो है तब आपका कौन काम कर रहा है? मेमोरी। मीन्स तब आप मेमोरी के साथ रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो इस सिग्नल से आप आइडेंटिफाई करते हो कि whatever your operation is going on, either read or write, वो किसके साथ हो रहा है? इनपुट आउटपुट के साथ हो रहा है या मेमोरी के साथ हो रहा है? अगर इस सिग्नल की वैल्यू हाई है मतलब 1 है, तब आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ काम हो रहा है। अगर इस सिग्नल की वैल्यू लो है यानी 0 है, तब आपका मेमोरी के साथ रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। करेक्ट। सो दीज आर योर कंट्रोल सिग्नल्स: ALE, एड्रेस लैच एनेबल,
read signal, write signal, or input output slash memory. These are your 4 control signals that are used in 8085 microprocessor. Okay. Next is your status signal. There are 2 status signals, S0 and S1. These status signals basically used to identify the status. मतलब कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, चल क्या रहा है, ये आपको किससे पता चलता है? आपके स्टेटस सिग्नल से, S0 एंड S1 से। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है, काइंड ऑफ अ ट्रुथ, जिसके रिजल्ट से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि व्हाट ऑपरेशन इज गोइंग ऑन इन माइक्रो प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर S1 और S0 दोनों की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो होल्ड स्टेट में है। होल्ड मीन्स नथिंग इज गोइंग ऑन, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका बिल्कुल आइडल स्टेट में है, देयर इज नथिंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट, इफ S1 and S0 are 0 and 1, that means write operation is going on. बट हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि राइट ऑपरेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ हो रहा है या मेमोरी के साथ। स्टेटस सिग्नल्स को देख के आप सिर्फ ये बता सकते हो कि हो क्या रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपकी S1 और S0 की वैल्यू 1 और 0 है, तब आपका रीड ऑपरेशन गोइंग ऑन। ठीक, एंड इफ द वैल्यू ऑफ S1 and S0 is 1 1, that means fetch operation is going on. Fetch means you are fetching the op code, यानी कि ऑपरेशन कोड from the memory. It is also kind of read operation. लेकिन जब हम सिंपल रीड लिखते हैं, दैट मीन्स हम डेटा को रीड कर रहे हैं, बट जब हम फैच लिखते हैं, दैट मीन्स हम ऑप कोड को रीड कर रहे हैं मेमोरी में से। ऑप कोड होता है आपका ऑपरेशन कोड, जो कि आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। करेक्ट। स्टेटस सिग्नल्स, देयर आर 2 स्टेटस सिग्नल्स, S1 and S0. These are used to identify कि what operation is going on. बस आप सिर्फ ये बता पाते हैं उनको देखिए कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, होल्ड स्टेट में है या फिर ऑफ कोर्स को फेच कर रहे हैं, बट आप ये नहीं बता सकते कि वो ऑपरेशंस किसके साथ परफॉर्म हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट के साथ या फिर मेमोरी के साथ। करेक्ट। दीज आर योर कंट्रोल सिग्नल्स एंड स्टेटस सिग्नल्स, एंड अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Here we have a table जिसमें हमने स्टेटस सिग्नल्स को इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी वाले सिग्नल के साथ कंबाइन किया है, क्योंकि क्या था कि स्टेटस सिग्नल से आप ये बता सकते हो कि ऑपरेशन क्या चल रहा है, बट किसके साथ चल रहा है वो आप नहीं बता सकते, इसलिए हमने स्टेटस सिग्नल्स को कंबाइन किया है विद इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी के साथ। Here are the different values of S1 and S0 with IO slash M. Obviously अब IO slash M की वैल्यू जहाँ पे 0 है तो वहां पे ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म हो रहा है, मेमोरी के साथ, और जहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है वहां पे ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म हो रहा है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। अब सपोज हमने क्या बोला था, रीड ऑपरेशन कब होता है, जब S1 और S0 की वैल्यू 1 0 होती है। नाउ लुक इनटू द कॉलम, सॉरी रो सेकेंड, हमारे पास S1 और S0 की वैल्यू 1 0 है। 1 0 का मतलब कि रीड ऑपरेशन चल रहा है, बट अभी रीड ऑपरेशन किसके साथ चल रहा है, इनपुट आउटपुट के साथ या मेमोरी के साथ, ये आपको किससे पता चलेगा, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी वाले सिग्नल से। अब सेकंड रो में देखो, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी वाले सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। जब इस सिग्नल की वैल्यू 0 होती है तब कौन काम करता है, आपकी मेमोरी, क्योंकि वो लो पे चलती है। तो यानी कि सेकंड रो की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड किसके साथ, मेमोरी के साथ। करेक्ट। इन द सेम वे अगर हम जाएं 6 वाली रो में, तो वहां पे S1 और S0 की वैल्यू 0 1 है। लास्ट टेबल में हमने क्या था, जब S1 और S0 की वैल्यू 0 1 होती है तब आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, बट अगेन वो हो किसके साथ रहा है, ये आपको फिर से पता चलेगा किससे, आपके IO स्लैश M वाले सिग्नल से। अब इस वाली रो में जो आपकी 5th रो है, इसमें IO स्लैश M की वैल्यू क्या है, 1। 1 पे कौन काम करता है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो दैट मीन्स यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसके साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। करेक्ट। यहाँ पे हमने सिंपली स्टेटस सिग्नल को इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी के साथ कंबाइन किया है, जस्ट टू नो कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके साथ हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ या फिर मेमोरी के साथ। ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू होती थी S1 S0 की, लास्ट टेबल में जो हमने देखा था 0 0 0 0 पे क्या था, होल्ड स्टेट में। अब उसके साथ IO स्लैश M की वैल्यू चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, कुछ हटा नहीं करती, वो होल्ड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही सेकंड लास्ट रो में जब आपका S1 और S0 की वैल्यू 1 1 होती है तब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ऑपकोड फेच होना चाहिए, लेकिन इसके साथ IO स्लैश M की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि इनपुट आउटपुट काम कर रहा है। अब आपके जो ऑपकोड्स होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, उनको आप इनपुट आउटपुट से तो फेच नहीं कर सकते ना, इसलिए जब आपका S1 और S0 ऑपकोड फेच स्टेट में है,
लेकिन इधर से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिलेक्टेड हैं, दैट मीन्स उस टाइम पे क्या आया है, इंटरप्ट मीन्स कोई और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि फेचिंग मेमोरी से होगी, बट अगर यहाँ पे सिग्नल इनपुट आउटपुट आपका एक्टिव है तब वो फेचिंग केस व्हाट विल हैपन, एन इंटरप्ट विल अकर। क्लियर? So these are your status signals combined with your input output slash memory. Just to tell you कि S1 S0 से तो सिर्फ ये पता चल रहा है क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, बट हमने इसको इनपुट आउटपुट के साथ कंबाइन कर दिया ये जानने के लिए कि वो ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म हो रहे हैं। राइट, दीज आर योर स्टेटस सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट इज योर सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, जिसके लिए हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, SID एंड SOD। करेक्ट, SID इज योर सीरियल इनपुट डेटा लाइन। ये आपका सिग्नल किस लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपको सीरियल फॉर्म में अपने डेटा को इनपुट कराना है तब आप लोग इस सिग्नल का यूज करते हो। ऐसे ही SOD आपका हो गया सीरियल आउटपुट सिग्नल। ये कब यूज होगा, जब आपको सीरियल फॉर्म में अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, यानी कि राइट करना है। इनपुट मीन्स डेटा रीड करना है, सॉरी इनपुट मीन्स डेटा राइट करना है और आउटपुट मीन्स डेटा रीड करना है। बट जब आपको सीरियल फॉर्म में करना है तब आप ये दो सिग्नल्स यूज करते हो, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। इनपुट मीन्स राइट कराना एंड आउटपुट मीन्स रीड करना। ओके, next are your interrupts and peripheral initiated signal, the last group of pins in 8085। सबसे पहले इंटरप्ट सिग्नल्स। इंटरप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है, इंटरप्ट्स आपके होते हैं कि सपोज आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हो बट इन बिटवीन कोई और इंस्ट्रक्शन जो ज्यादा प्रायोरिटी की है, जिसका साथ के साथ एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है, तब आप क्या करते हो, अपने काम को बीच में छोड़ के, मतलब अपनी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको पॉज करके आप जो दूसरी इंस्ट्रक्शन आई है उसको पहले एग्जीक्यूट कराते हो। तो वो जो दूसरी इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन के बीच में आई है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्ट। और इन इंटरप्ट्स को हैंडल करना बहुत जरूरी है एंड दे आर हैंडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। मतलब मान लो कोई इंटरप्ट आ रहा है और उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है कि नहीं भाई इसको तो अभी एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको उसे तभी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन टू योर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 5 इंटरप्ट हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज ट्रैप, सेकेंड इज RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। ये पांचों इंटरप्ट अपनी प्रायोरिटी में लिखे हुए हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो आपका इंटरप्ट होता है दैट इज योर ट्रैप। अगर ये आता है तो आपको इसे हैंडल करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो जैसा इसका नाम है वैसा ये काम करता है, इट कैन ट्रैप, और आपके सिस्टम में फॉल्ट तक आ सकता है अगर आप इसको मतलब टाइमली हैंडल नहीं करते। ऐसे ही RST वाले 3 आपके पास इंटरप्ट्स हैं। RST मीन्स ये आपके सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं अगर आप इनको हैंडल नहीं करते तो। जो आपका लास्ट वाला है दैट इज योर INTR, इट स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो इस सिग्नल से आपको पता चलता है कि हाँ जी इंटरप्ट आया है। एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ओके, जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तब आपका INTR वाला सिग्नल हाई हो जाता है, और जैसे ही सिग्नल हाई होगा आपके सिस्टम को पता लग जाता है कि हाँ जी इंटरप्ट आया है, तो वी नीड टू हैंडल दैट इंटरप्ट फर्स्ट। ठीक, और इस INTR की एक्नॉलेजमेंट के लिए हमारे पास होता है INTA, दैट इज योर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ऑब्वियसली अगर किसी चीज की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उसको एक्नॉलेज भी करोगे ना, तो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को आप एक्नॉलेज किससे करते हो, INTA से। INTA के साथ अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी आपका लो पे काम करता है। और ये बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ मैसेज जो आप इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आने के बाद सेंड करते हो कि हाँ जी आपका मैसेज हमने रिसीव कर लिया है। क्लियर है, दीज आर योर इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो उसके बीच में कोई और आके कह देता है कि मेरा काम ज्यादा जरूरी है, तो दैट इज योर इंटरप्ट। अब जो आया है उसका काम कितना जरूरी है दैट इज डिसाइडेड अपॉन द प्रायोरिटीज। हर एक इंटरप्ट की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, आप इसी प्रायोरिटी के बेस पे उसको हैंडल करते हो। ठीक, और इंटरप्ट जब भी आता है तो पहले INTR सिग्नल एक्टिवेट होता है, उसके बाद ही आप INTR की एक्नॉलेजमेंट भेजते हो और उसके बेस पे आप फिर इंटरप्ट को हैंडल करते हो। क्लियर, दीज आर योर इंटरप्ट सिग्नल्स। नेक्स्ट आर योर पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स, जो आपके इंटरप्ट के साथ ही थे। पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स आपके कुछ ये 5 सिग्नल्स हैं, जैसे कि रीसेट इन, रीसेट आउट, होल्ड, HLDA, रेडी।
फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रीसेट इन, अगेन इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो आप बार भी लगा सकते हो, और ये सिग्नल आपका लो पे एक्टिव होता है। ठीक है, इस सिग्नल का काम क्या है, ये आपके प्रोग्राम काउंटर को रीसेट कर देता है 0 पे। मतलब अगर ये सिग्नल एक्टिव है तो मतलब आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चाहे जितनी मर्जी हो, कोई सा मर्जी उसमें एड्रेस स्टोर्ड हो, वो 0 पे रीसेट हो जाता है। मीन्स आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। ऐसे ही आपका रीसेट आउट है, इसके साथ कोई कोमा नहीं है, कोई बार नहीं है, ये आपका हाई कंट्रोल सिग्नल है, मतलब कि ये 1 पे काम करता है। ये क्या करता है, ये आपके पूरे माइक्रो प्रोसेसर को ही रीसेट कर देता है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर डिवाइसेस एज वेल। रीसेट इन आपके प्रोग्राम काउंटर को रीसेट करता है 0 वैल्यू पे, रीसेट आउट आपके माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करता है, उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो सबको स्टॉप कर देता है, और फिर स्टार्टिंग से सब कुछ आपको स्टार्ट करना पड़ता है। क्लियर है, रीसेट इन एंड रीसेट आउट। नेक्स्ट इज योर होल्ड सिग्नल। होल्ड सिग्नल बेसिकली क्या है, अभी हमने इंटरप्ट की बात करी थी, इससे क्या होगा कि मान लो कोई और डिवाइस डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, जो आपका करंट काम चल रहा है उसको होल्ड पे डाल के सारी बसेस का कंट्रोल दूसरे डिवाइसेस को दे देते हो, ताकि वो अपना काम खत्म कर ले, उसके बाद आप बसेस का कंट्रोल वापस ले लेते हो, क्योंकि जब तक बसेस का कंट्रोल आपके पास है तभी आप काम कर सकते हो। बसेस मीन्स योर डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। होल्ड सिग्नल से क्या होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो करंट काम चल रहा है उसको होल्ड पे डाल के किसी और ने जो रिक्वेस्ट की है बसेस के लिए, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ठीक है, होल्ड मीन्स अपने काम को यहाँ पे होल्ड पे डालना, एंड फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ अदर डिवाइसेस बाय प्रोवाइडिंग देम द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट बसेस। नेक्स्ट इज योर HLDA। HLDA इज योर होल्ड एक्नोलेजमेंट। अब होल्ड भी एक तरह की रिक्वेस्ट होगी कि हमें आपकी बसेस का कंट्रोल चाहिए, अपने काम को होल्ड पे डाल दो। HLDA क्या हो गया, उस रिक्वेस्ट के एक्नोलेजमेंट कि हाँ जी आपने जो रिक्वेस्ट की है वो हमने रिसीव कर ली है, तो आप उसको एक्नोलेजमेंट सेंड कर दो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि हाँ जी मुझे बसेस का कंट्रोल अब मिलने वाला है। ठीक है, रीसेट इन और रीसेट आउट दोनों एक कैटेगरी के हो गए, होल्ड और HLDA ये दोनों एक कैटेगरी के। लास्ट वन इज योर रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल इंडिकेट करता है कि आपके डिवाइसेस जो हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है कि नहीं है। अगर रेडी सिग्नल की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स योर डिवाइसेस आर रेडी, बट अगर आपकी रेडी सिग्नल की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स योर डिवाइसेस आर नॉट रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर। Here, these are your peripheral initiated signals: reset in, reset out, hold, HLDA, and ready. Correct? This was all about the pins of 8085. 40 pins we have in it, and we have divided the 40 pins into 6 groups of similar pins. Right?